Hello friends, welcome to problem solution of accounts of sale under installment system। ये जो क्वेश्चन है वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में अप्रैल 2019 में पूछा गया है। फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फर्दर, आप ये वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ ले ताकि समझने में आसानी हो। सो होप फ्रेंड्स यू हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन। आइए हम डिस्कस करते हैं। हियर माधव लिमिटेड सोल्ड अ स्कूटर to a customer on installment purchase system on 1st April 2015. At the time of delivery, rupees 10,000 were paid, means here down payment amount is rupees 10,000 and annual installment inclusive of interest at the end of first year 8,600. It means the first installment amount is 8,600, second installment amount is 8,400 and the third installment amount is 8,200। फ्रेंड्स, यहाँ याद रखिए ये जो तीनों इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूसिव है। आफ्टर दैट information of depreciation is available. Here depreciation is at the rate of 10% using straight line method. It means यहाँ हमें depreciation सिर्फ एक बार find out करना है, that will remain same because here method is straight line method. Here they are asking us to prepare accounts in the books of purchaser. This account includes scooter account, interest suspense account, interest account and depreciation account. Accounting year ends on 31st March for both parties and we are obviously required to show necessary calculations. ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ कैलकुलेशन ऑफ टोटल पेमेंट। रिमेंबर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है उसमें कैश प्राइस नहीं दी गई है एज वेल एज द इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो मिसिंग। ये दोनों चीज हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है, तो डाउन पेमेंट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, जिससे हम ढूंढ सकते हैं टोटल पेमेंट। तो सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ था at the time of delivery, that is down payment, that is rupees 10,000. After that first installment was paid on 8,600, then second installment is of 8,400 और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है that is 8,200। यानी ये सभी को मिला के, ये सभी का एडिशन करके हम कह सकते हैं the total amount paid by the purchaser is 35,200 rupees. Okay friends, here interest rate is not available, but we know the interest amount is included in the installments. So here we have to make certain assumptions for interest calculation. तो आइए देखते हैं। तो here we can say that कि installment की जो amount होती है उसमें दो चीजें होती है। First is cash price and second is interest. Now here we are assuming X for cash price and we are assuming Y for interest. Now remember, in this question we have given total 3 installments. Now normally first installment includes higher interest which decreases gradually with second and third installment. On this basis we can say that if first installment includes interest 3 times, यानी कि अगर पहला जो इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट 3 टाइम्स है तो वो दूसरे इंस्टॉलमेंट में 2 टाइम्स होगा और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें होगा 1 टाइम। So okay friends, we continue with the same assumptions. Here we can say that for the first installment, here x plus 3y, जहां पे x का मतलब है कैश प्राइस और y का मतलब है इंटरेस्ट। सेम वे इन सेकंड इंस्टॉलमेंट x plus 2y और थर्ड इंस्टॉलमेंट x plus y। यहाँ पे 3y का मतलब होगा कि इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हियर इंटरेस्ट इज 3 टाइम्स, in second installment interest amount is 2 times and in third installment interest amount is 1 time. Here gradually जो interest है वो decrease हो रहा है, that we have assumed. Okay friends, now we are going to calculate the value of y, that is interest.
तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम इस तरह से अब लिखेंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 8600, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. Same way we can also say that second installment is equal to x plus 2y is equal to 8400. रिमेंबर फ्रेंड्स, यहाँ कंपैरिजन के लिए मैंने फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट लिए हैं, आप तीनों में से कोई भी इंस्टॉलमेंट ले सकते हो. नाउ वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंस्टॉलमेंट्स. तो यू नो इन मैथमेटिकली इफ वी गो फर्दर, तो x में से x माइनस होगा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, देन 3y माइनस 2y, तो यहाँ बचेगा ओनली y, 1y, मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ y, एंड 8600 माइनस 8400, तो यहाँ पे आएंगे 200. तो इस तरह से हमें y की वैल्यू मिली है 200 रुपीज. इट मीन्स वी कैन से दैट इन ऑल दिस फॉर्मूलाज जहाँ पे y है वहां पे हमें 200 रखने हैं. नाउ लेट अस गो फर्दर, और अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ x. नाउ वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने ऐसे लिखा था कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 8600. नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमने ढूंढ ली है 200, तो वो यहाँ पे हम रखते हैं. तो इस तरह से सिंप्लीफाई होगा, x plus 600 is equal to 8600. We want to calculate the value of x, इसलिए 600 को हम सामने ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, जो माइनस हो गए. सो x is equal to 8600 माइनस 600. तो इस तरह से हमें x की वैल्यू जो है वो मिल गई. x की वैल्यू होगी 8000 रुपीज. इट मीन्स कि जो सारे इंस्टॉलमेंट है जहां पे हमने x लिखा है वहां पे वैल्यू आएगी 8000. नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट. तो यहाँ पे x प्लस 2y हमने लिखा था और ये दोनों का टोटल होना चाहिए 8400. तो आइए देखते हैं. तो x मतलब हमने ढूंढ लिया है 8000 और y का यहाँ वैल्यू है 200 जो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से हो जाएगा 8400. और सेम वे इन थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑल्सो x प्लस y इज इक्वल टू 8200. तो x मतलब 8000, y मतलब 200, तो इस तरह से थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होगी 8200. तो इस तरह से सारे जो इंस्टॉलमेंट है उसमें कैश प्राइस और इंटरेस्ट अमाउंट या इंटरेस्ट पोर्शन हमें मिल गया है. ओके फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग फर्दर नाउ वी कैन कैलकुलेट द कैश प्राइस. अब हम ये जो स्कूटर है उसकी कैश प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. हमने जो टोटल पेमेंट किया है उसमें से टोटल इंटरेस्ट अमाउंट डिडक्ट करनी है. जो टोटल पेमेंट हमने शुरू में कैलकुलेट किया था दैट इज 35,200, उसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट करना है. इंटरेस्ट इस तरह से आएगा, हमने जैसा कि कैलकुलेट किया. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 600, सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट अमाउंट है 400 और थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट अमाउंट था 200. तो ये जो तीनों इंटरेस्ट मिला के टोटल इंटरेस्ट होगा 1200, जो हम टोटल पेमेंट में से डिडक्ट करेंगे. तो इस तरह से हमें स्कूटर की कैश प्राइस मिलेगी 34,000 रुपीज. Okay, now we can also prepare the table of calculation of interest like this. तो यहाँ पे 5 कॉलम आएंगे. The first column date, second column is amount paid, then interest in this amount paid and cash price in this amount paid, और लास्ट का जो कॉलम है वो दिखाता है बैलेंस ऑफ कैश प्राइस. Now we are starting with the date of transaction, that is 1st April 15. At the time of transaction the amount paid was 10,000. Now friends, as you know, at the time of transaction whatever amount is paid that is also known as down payment. तो उसमें इंटरेस्ट जो है वो होता नहीं है. It means the full amount we will consider as cash price. अब कैश प्राइस हमने ढूंढ ली है 34,000, उसमें से 10,000 डिडक्ट हो गए तो बैलेंस रहेगी 24,000. ओके, नाउ इट्स टाइम टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है दैट इज ऑन 31st March 16.
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज 8600। अब हमने जैसे कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट अमाउंट इज 600, यानी कि कैश प्राइस होगी 8000। अब 24000 में से 8000 माइनस होगा तो अमाउंट अब बचेगी बैलेंस ऑफ कैश प्राइस 16000। okay, moving towards the second installment, that is 31st March 17। at that time the amount is 8400, उसमें से इंटरेस्ट है 400 और कैश प्राइस 8000 है। अब 16000 जो बैलेंस थी उसमें से ये 8000 डिडक्ट करेंगे तो बैलेंस ऑफ कैश प्राइस रहेगी 8000। now we are going for the last installment, that is on 31st March 18, 8200, उसमें से इंटरेस्ट है 200। नाउ कैश प्राइस इज 8000, तो वी कैन सी हियर जो लास्ट बैलेंस 8000 थी वो यहाँ पे हम पे कर रहे हैं। इट मीन्स नाउ देयर इज नो एनी बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। यहाँ पे हम टोटल भी कर सकते हैं, तो हियर टोटल अमाउंट पेड इज 35200, इन विच टोटल इंटरेस्ट पेड इज 1200 and cash price is 34,000 rupees. Okay friends, now it's time to calculate depreciation. As the information given in the question, depreciation जो है हमें हर साल 10% चार्ज करना है और वो स्ट्रेट लाइन मेथड से। नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड से हम इस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर एसेट वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, तो यहाँ जो स्कूटर की कैश प्राइस है वो है 34,000, तो उसका 10% डेप्रिसिएशन यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन होगा 3400। रिमेंबर यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो हर साल सेम रहेगी बिकॉज हियर स्ट्रेट लाइन मेथड इज देयर। Okay friends, now we are going to prepare accounts as required in the question. तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे असेट अकाउंट यानी कि स्कूटर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बायर। तो इस तरह से प्रिपेयर होगा। सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन आएगा दैट इज डेबिट साइड ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज 1 अप्रैल 2015। अब यहाँ पे जो बायर है वो स्कूटर परचेस करता है माधव लिमिटेड से, तो यहाँ माधव लिमिटेड अकाउंट डेबिट आएगा। हियर द कैश वैल्यू, रिमेंबर द कैश वैल्यू ऑफ द स्कूटर, कैश प्राइस ऑफ द स्कूटर वी हैव टू पुट हियर। अब ये जो है वो स्कूटर अकाउंट है यानी इस पे ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन आएगा। तो नाउ क्रेडिट साइड वी आर गोइंग फॉर द डेट 31 मार्च 16 ईयर एंड, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे स्कूटर के ऊपर, दैट इज 3400। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस अकाउंट फॉर 2016, तो यहाँ पे जो टोटल डेबिट साइड ज्यादा है वो यहाँ पे लिखेंगे, सेम अमाउंट क्रेडिट साइड भी लिखेंगे। तो इस तरह से हमें जो बैलेंस मिलेगी, डिफरेंस मिलेगा, दैट इज 30,600, उसमें हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। अब यही जो बैलेंस है वो नेक्स्ट साल हम डेबिट की तरफ ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 16, बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,600। अब सेम वे हमें क्रेडिट जाना है 31 मार्च 17, ईयर एंड हो गया, यहाँ पे हमें डेप्रिशिएट करना है स्कूटर, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 3400। यहाँ पे जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का सेम रहेगा और सेकेंड जो ईयर है उसकी बैलेंस हमें मिलेगी स्कूटर अकाउंट की 27,200। अगेन वो हम सामने ट्रांसफर करेंगे डेबिट फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल 17। यहाँ पे एज यूजुअल हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,200 और फिर सामने वापस जाएंगे 31 मार्च 18 इज द ईयर एंड, तो सबसे पहले हम डेप्रिशिएट करेंगे स्कूटर 3400 और उसके बाद हम बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस आएगी 23,800। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें 3 इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं, इसलिए अकाउंट जो है वो 3 साल का ही प्रिपेयर करना है, बट यहाँ पे जो ये बैलेंस होगी वो नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रिंग
फॉरवर्ड करके ब्रिंग डाउन करके हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 18 सिर्फ यहाँ हम बैलेंस दिखाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 23,800। Okay friends, now we are going for the second account required, that is interest suspense account, जो हमें पूछा गया है in the books of buyer। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ऐसे शुरू होगा, दैट इज फ्रॉम डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे जो ट्रांजैक्शन है उसी की 1 अप्रैल 15। यहाँ पे वापस डेबिट होगा माधव लिमिटेड यानी कि जो सेलर है उसका अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट आएगी टोटल इंटरेस्ट यानी कि जो बायर टोटल इंटरेस्ट पे करने वाला है वो अमाउंट आएगी, दैट इज 1200। अब ईयर एंड पे हम सामने की ओर जाएंगे, क्रेडिट यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे। इट मींस जो पहले साल का इंटरेस्ट है इंस्टॉलमेंट के अंदर वो यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। तो इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट अमाउंट इज 600। अब ये जो अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड अमाउंट बड़ी है 1200, वो सेम अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। हियर बैलेंस इज 600। वही बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर डेबिट शो करेंगे 1 अप्रैल 16, बैलेंस ब्रॉट डाउन 600 रुपीज, और दूसरे साल भी हम क्रेडिट जाएंगे 31 मार्च 17 ईयर एंड पे, और इंटरेस्ट अकाउंट जो है क्रेडिट करेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट अमाउंट है 400 रुपीज। तो अब ये जो दूसरा साल है वो क्लोज करेंगे और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो बैलेंस यहाँ पे आएगी 200। नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड ईयर। तो उसी तरह से बैलेंस ब्रॉट डाउन 200, वो जो बैलेंस थी यहाँ पे लाएंगे। अब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है सामने हम क्रेडिट करेंगे और थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी इतना ही होगा 200। इट मीन्स नाउ आफ्टर थर्ड इंस्टॉलमेंट ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा पूरी तरह से, दोनों जगह पे डेबिट और क्रेडिट। अब कोई बैलेंस आएगी नहीं। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर द इंटरेस्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बायर। तो इंटरेस्ट अकाउंट इस तरह से होगा। तो हर साल, अभी हमने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट देखा, उसमें हमने देखा कि हर साल हम इंटरेस्ट जो थे वो क्रेडिट करते थे। तो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है वो डेबिट होगा हर ईयर एंड पे। तो सबसे पहला ईयर एंड है मार्च 16, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हमने डेबिट किया है। नाउ इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर द बायर, तो वो जो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हमें लिखना है पीएनएल अकाउंट और सेम अमाउंट। याद रखिए यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं आएगी, दोनों तरफ यहाँ सेम टोटल आएगा और ये बंद हो जाएगा। सेम वे फॉर सेकेंड ईयर 31 मार्च 17 डेबिट साइड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा पीएनएल अकाउंट, और यही एंट्री आएगी थर्ड ईयर भी, सिर्फ साल चेंज होगा 18 इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। Okay friends, now we are going for the last account, that is depreciation account in the books of buyer। तो यह भी इंटरेस्ट अकाउंट की तरह ही बनेगा क्योंकि डेप्रीशिएशन इज ऑल्सो एक्सपेंस सेम लाइक इंटरेस्ट। यहाँ पे फर्क कितना होगा, यहाँ पे हम डेबिट जो असेट है वो करेंगे, यानी कि स्कूटर अकाउंट हम तीनों साल में डेबिट करेंगे और डेट भी होगी जो ईयर एंड की आएगी। तो फर्स्ट ईयर एंड है 31 मार्च 16, स्कूटर अकाउंट डेबिट, और ये डेप्रीशिएशन हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट में, यानी क्रेडिट होगा पीएनएल अकाउंट। और यहाँ पे डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से है, इसलिए जो तीनों साल डेप्रीशिएशन की अमाउंट्स भी सेम आएगी। तो हर साल यही एंट्री आएगी, स्कूटर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, और लास्ट ईयर 18 में भी स्कूटर अकाउंट डेबिट और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट।